Jai Hind, Jai Bharat to everyone. Students, I hope you all are fit, fine, and safe at home. Welcome to our online education. Myself, Sengundar Sulakshna, and I will be teaching you economics. So, students, today we are here to see Standard 12th Economics, chapter number 7, Population. As you all know, today we are here to start up with the new chapter. So let us see the part 1 of the chapter in this video. So before starting the current chapter, let us have a short introduction about what we are going to see on this chapter. So population का नाम सुनते ही आपको कहीं ना कहीं आइडिया आ गया होगा, क्योंकि previously we have seen 6 chapter number 1 to 6. You all know that in the portion of the chapter number 1 to 6, somewhere we have seen the population's problem in each and every portion. आप अगर अनएम्प्लॉयमेंट की बात करते हो या इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट की बात करते हो, हर जगह पे पॉपुलेशन का कहीं ना कहीं एक इम्पोर्टेंट व्यू पॉइंट देखा गया है. दैट्स वाई टुडे वी आर हियर टू सी द चैप्टर ऑफ पॉपुलेशन इन अ वेरी डेप्थ मैनर. सो इन दिस चैप्टर वी आर गोइंग टू सी द पॉपुलेशन एक्सप्लॉयजन. व्हाट इज पॉपुलेशन एक्सप्लॉयजन? किस तरीके से इंडिया के अंदर ये देखा गया? व्हाट वर द कॉजेज ऑफ द इंक्रीज ऑफ द पॉपुलेशन? किस रीजन की वजह से इंडिया में इतना सारा पॉपुलेशन का इंक्रीज देखा गया है? अब एक्चुअली कॉजेज तो हो गया, हमें पता तो चल गया यही रीजन की वजह से इंक्रीज हुआ, तो उसको डिक्रीज कैसे किया जाएगा? इन द सेंस उसके मेजर्स क्या है, किस रेमेडीज के वजह से इकोनॉमिक को सपोर्टिव करता हुआ पॉपुलेशन की डिक्रीज देखा जाएगा, एक्सप्लोशन को और कैसे रोका जा सकता है, उस पोर्शन के बारे में इस चैप्टर के अंदर हम डिटेल में देखने वाले. सो स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस मूव ऑन विद द लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन ऑफ द पोर्शन दैट वी आर गोइंग टू सी फ्रॉम टुडेज पीडीएफ इन द फर्दर वीडियो. So students, now let us move on with the today's portion from the chapter number 7, population. So as I said, let us see the portion of the introduction, and then we are going to see the meaning of population explosion, population trend in India, in which way the trend of the population is going on, and what are the causes of the rapid increase in the population growth. In that we are going to see the birth rate, death rate, causes of the high birth rate and causes of the low death rate, economic factors and the other factors of that portion. And after that, finally we are going to see the measures to control the population in a very detailed manner. So now let us move on with the introduction. So I am going to read it out, listen it out carefully, then we will discuss about it in a very detailed manner. Introduction. It becomes inevitable to discuss about the increasing population when the world population has crossed 7 billion mark and India's population has reached 1.25 billion. The basic responsibility of every government is to fulfill the basic requirement of its growing population. For this, the country's natural resources assumes utmost importance, because only with the help of the natural resources economic development become possible. Here, between population and the natural resources there are two aspects. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें कहीं ना कहीं हम जब भी कुछ भी डिस्कस करते तो उस टाइम पे इकोनॉमिक रिलेटेड जब भी हम बात करते तो उसमें कहीं ना कहीं इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को टाला नहीं जा सकता. ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक की तरह हमेशा डिस्कशन में एक इन्वॉल्वमेंट देखा जाता है. अगर हम वर्ल्ड पॉपुलेशन की बात करते तो वो 7 बिलियन मार्क, यानी 7 बिलियन तक उसने अपना पूरे वर्ल्ड में 7 बिलियन तक का पॉपुलेशन ग्रोथ देखा गया, जबकि सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर पॉपुलेशन 1.25 बिलियन देखा जाता है. 7 बिलियन में से इंडिया के अंदर ही सिर्फ 1.25 बिलियन इंक्लूडेड है. तो इसका मतलब बाकी जो पोर्शन है 1.25 मतलब ऑब्वियसली 5.75 जो है वो अदर कंट्रीज के, यू नो दैट वर्ल्ड में कितने सारे कंट्रीज है, उसमें से इंडिया का एक बेंचमार्क बन गया कि 1.25 बिलियन सिर्फ इंडिया के अंदर देखा जाता है. एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, गवर्नमेंट का एक बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको पता है कि हर एक उसकी जो जनता यानी कंट्री के अंदर जितने पॉपुलेशन है उनकी बेसिक खाना पीना घर ये सारी चीज़ों के ऊपर उनको ध्यान देना. अब खाना पीना घर की अगर हम बात करते, खाने पीने के लिए और घर
घर, ये सारी चीज़ें मेंटेन करने के लिए पैसे की ज़रूरत है। तो पैसे कैसे होता है? तो इनकम से होता है। इनकम रेज करने का जवाबदारी भी कहीं ना कहीं, एम्प्लॉयमेंट की जवाबदारी भी गवर्नमेंट के ऊपर आ जाता है। इसीलिए कंट्री को क्या करना पड़ता है, उसके पास जितना नेचुरल रिसोर्सेज है उसका ज़्यादा से ज़्यादा जितना यूज़ हो सकता है उतना उसको इम्पोर्टेंस दे के उस रिसोर्सेज को यूज़ करके कहीं ना कहीं इकोनॉमिक को डेवलप करने की कोशिश करता है। बट यहाँ पे पॉपुलेशन और नेचुरल रिसोर्सेज की अगर हम बात करते हैं तो दो एक्सपेक्ट्स के तरह देखा जाता है। ये दोनों को बहुत ही अलग तरीके से ब्रीफ में देखा गया है। लेट अस रीड दैट एंड नो दैट इन अ वेरी वेल मैनर। As population increases, the limited natural resources depletes fast, and in the long run it becomes dangerous for the future generation. When unskilled population rises, the natural resources will not be utilized in the best possible manner, which proves to be a barrier for the economic development of a कंट्री। सो कहीं ना कहीं जितना पॉपुलेशन इंक्रीज होता जाता है उसके साथ साथ नेचुरल रिसोर्सेज की अगर हम बात करते हैं, जमीन ले लो, ठीक है, पानी ले लो, ये सारी चीज़ें कोई नहीं बना सकता। ये सारी चीज़ें ऑलरेडी गॉड गिफ्टेड माना जाता है। सो जितने लोग बढ़ते हैं उतना ये सारी चीज़ें तो बढ़ नहीं सकता। इसका मतलब ये लिमिटेड है। सो इस लिमिटेड रिसोर्सेज धीरे धीरे खत्म होने लगता है फास्टली, यानी जल्द से जल्द चीज़ें खत्म। अभी आपको पता है कि बहुत सारी जगह पे लैंड की कमी, मुंबई की बात करो, जमीन की कमी है, घर बहुत छोटे छोटे होते और इतने महंगे भी देखे जाते। तो कहीं ना कहीं क्यों महंगा हुआ? क्योंकि उसकी कमी है, स्कैरसिटी की वजह से। सो लिमिटेड रिसोर्सेज, उसके साथ साथ कहीं ना कहीं पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है। एज ए रिजल्ट क्या होगा? लॉन्ग टर्म के लिए डेंजरस होगा। कैसे लॉन्ग टर्म के लिए डेंजरस होगा? अगर इसी तरीके से हम ही सारी चीजें यूज करके चले जाएंगे तो फ्यूचर जनरेशन के लिए क्या रहेगा? सो एज आई सेड, कहीं ना कहीं जितना डेवलपमेंट देखा जा रहा है उसके साथ साथ रिसोर्सेज भी कम हो रहा है। अगर जमीन नहीं रहेगी, सब घर खरीद लेंगे, सब रह जाएंगे, सबने अपना अपना देख लिया। फ्यूचर में किसी को अगर कोई कुछ करना हो तो लिमिटेड रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज उसके पास नहीं रहेगा तो फ्यूचर जनरेशन में वो कैसे यूज किया जाएगा? तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम देखा जाता है। सेकेंड, जितने अनस्किल्ड पॉपुलेशन, अनस्किल्ड मतलब जितने बिना आवड़त के, जिसके स्किल्ड नहीं है, जो स्किल्ड नहीं है कि पैसे का जनरेट कर पाए या कमा पाए, उसमें इतनी एफिशिएंसी नहीं है कि हर एक चीज को अच्छी तरीके से यूटिलाइज करे, ऐसे पॉपुलेशन जितना ज्यादा बढ़ेगा उतना जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसको वो बेस्ट तरीके से यूटिलाइज नहीं कर पाएगा। देखो, एक प्रोडक्ट को अगर हमें यूटिलाइज करना, हम नॉर्मल टूथपेस्ट को ले लेते हैं, हम टूथपेस्ट जब यूज करते हैं हम क्या करते हैं, वो खत्म होने के बाद भी उसको चिपक के, आपने देखा होगा, रोल करके दबा के उसके अंदर से लेने को, क्या है वो? यूटिलाइजेशन है। हम क्या करते हैं, उसके अंदर एक चीज भी वेस्ट नहीं जानी चाहिए, ऐसे करके उसको पैसा दिया है मतलब उसको यूटिलाइज कर दो, इस तरीके का सिनेरियो होता है। बट वैसे ही हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूटिलाइज नहीं कर पाते। तो अनस्किल्ड लेबर्स या अनस्किल्ड पॉपुलेशन की वजह से बेस्ट मैनर में कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्सेज यूज नहीं किए जाते और एज अ रीजन क्या होता है, वो एक बैरियर बन जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। अगर आपका रिसोर्सेज ही यूज नहीं हुआ तो आप एम्प्लॉयमेंट कैसे जनरेट करोगे? आप कहीं ना कहीं उस हिसाब से जैसे इकोनॉमिक डेवलपमेंट चाहते हो वैसे कैसे कर पाओगे? तो एक रुकावट बन जाता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर, कंट्री को वो डेवलप करने नहीं देता है। सो यहाँ पे जो पोर्शन ऑफ जो इंट्रोडक्शन है वो कंप्लीट हो रहा है। सिर्फ एक दो लाइन है, लेट अस रीड दैट एंड नो दैट इन अ वेरी वेल मैनर। सो अ स्टडी ऑफ पॉपुलेशन फॉर एन इकोनॉमिक बिकम्स वेरी essential. Rise in population is the root cause of the most of the problem in economic. So इसीलिए इकोनॉमिक को समझने के लिए कहीं ना कहीं पॉपुलेशन का स्टडी करना बहुत ही इंपॉर्टेंट माना जाता है। जितना राइज यानी जितने पॉपुलेशन में इंक्रीज देखा जाता है वो एक ही रीजन है, जितने लोग बढ़ रहे हैं वही मोस्ट ऑफ इकोनॉमिक का प्रॉब्लम माना जाता है। अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है, एग्रीकल्चर सेक्टर ठीक से नहीं यूज हो रहा है, हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ नहीं हो रहा है, हमारा पॉवर्टी, ये सारी चीज़ें क्यों हो रही है? क्योंकि लोग इतने बढ़ रहे हैं और उतना हम कोप अप नहीं कर पा रहे, इसी रीजन की वजह से ये देखा जाता है। सो हमें मोस्ट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम को अगर कम करना है तो पॉपुलेशन के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। इसीलिए पॉपुलेशन का कंटेंट जो है आपको बहुत ही डेप्थ में इस चैप्टर में समझाया गया। नेक्स्ट इट इज मीनिंग ऑफ द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। सो कहीं ना कहीं हमें इंट्रोडक्शन में पता तो चल गया क्यों इकोनॉमिक्स के अंदर पॉपुलेशन के बारे में हमें जानना और उसकी वजह से क्या क्या इंपैक्ट आ रहे हैं। बट पॉपुलेशन एक्सप्लॉयजन का मतलब क्या? फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लॉयजन का मतलब विस्फोट, जैसे बॉम्ब फटता है तो उसे एक्सप्लोजन बोला जाता है। तो पॉपुलेशन क्या फटता है? हाँ, यस, पॉपुलेशन जब एक हद से ज्यादा होने लगता है तो उसे कहीं ना कहीं डेंजरस माना जाता है। तो यहाँ पे मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन दिया गया। लेट अस रीड दैट एंड नो दैट इन अ वेरी वेल मैनर।
India's death rate has fallen rapidly, and as against it, birth rate has not fallen to that extent, which has resulted in rise in net population, which is known as population explosion. अगर आप देखो इंडिया के अंदर लोगों का मरना, डेथ रेट जो है वो कम हो गया. क्यों कम हो गया? क्योंकि हमारे पास मेडिकल एड्स इतना हो गया, लोग इतने एजुकेटेड है, बैलेंस फूड पे मानते हैं, डाइट फॉलो करते हैं, हेल्दी है, इम्यूनिटी सिस्टम को डेवलप करते हैं. कोई बीमारी होती है तो हॉस्पिटल से हमें तुरंत उसकी रिकवरी हो जाती. तो कहीं ना कहीं जितना मॉडर्न फैसिलिटी डेवलप होता जा रहा है उतना उतना लोग कम मर रहे हैं. बट जितना लोग कम मर रहे हैं उसके साथ साथ एक बाजू तो कम मर रहे हैं, दूसरे साइड ज़्यादा लोग पैदा हो रहे हैं, यानी बर्थ रेट जो है वो बढ़ रहा है. बर्थ रेट वो स्टेबिलिटी पे ना होने के बावजूद बढ़ने लगा. सो डेथ रेट कम होना और बर्थ रेट बढ़ना मतलब पॉपुलेशन में इंक्रीज देखा जाता है. सो नेट पॉपुलेशन में जो इंक्रीज देखा जा रहा है हद से ज्यादा, उसे पॉपुलेशन एक्सप्लॉयशन बोला जाता है. I'm going to read the next paragraph. Listen it out carefully. Population rise is the most important and the biggest reason for the various problems faced by the world. The world has never ever witnessed such a fast rate of growth of population as in the present period, and India is not an exception. सो पॉपुलेशन राइज की अगर हम बात करते तो इम्पॉर्टेंट और मोस्ट इम्पॉर्टेंट और सबसे बड़ा रीजन, बहुत सारे इकोनॉमिकल प्रॉब्लम को फेस करने का सबसे बड़ा रीजन जो है पॉपुलेशन राइज माना जाता है. और पूरे वर्ल्ड के अंदर, नॉट ओनली इन इंडिया बट पूरे वर्ल्ड के अंदर ये एक मेजर फैक्टर की तरह देखा जाता है. वर्ल्ड ने कभी इतना पॉपुलेशन ग्रोथ को फास्ट तरीके से रेज होता हुआ नहीं देखा. प्रेजेंट पीरियड की अगर हम बात करते, नॉट ओनली इन इंडिया को ही सिर्फ हम एक्सेप्शंस पे नहीं बोल सकते, सारे कंट्री के अंदर कहीं ना कहीं जितना इंक्रीज होना चाहिए उसमें फट करके एक रैपिड इंक्रीज पॉपुलेशन में देखा जाता है. और मेन हर एक इकोनॉमिक प्रॉब्लम का रीजन यही माना जाता है. सो लेट अस रीड द नेक्स्ट पैराग्राफ. Between 1931 and 2011, there has been a continuous rise in the population. In the year 1951, population of India was 36.1 crore, which has increased to 121.0.2 crores in the year 2011. Example, in the span of 60 years, population has increased by 84.92 crores, and average rate of growth of population was around 2.5%. More population has a high rate of growth of population along with very high rise in population after 1970 is identified as population explosion. So 1931 और 2011 के बीच में एक कंटिन्यूस राइज देखा गया. अभी ये पॉपुलेशन का प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुआ? तो 1931 तब से लेके 2011 ये जो टाइम पीरियड है इसी में ही पॉपुलेशन रैपिडली कंटिन्यूअसली इंक्रीज होना शुरू हुआ. इन द ईयर 1951 उस टाइम पे पॉपुलेशन सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर 36.1 करोड़ देखा गया, जो कि 2011 आते आते 121.0.2 इंक्रीमेंट में देखा गया. यानी यू कैन सी दैट वास्टली हम बोल सकते हैं 36 का है और 121 का है, और इसमें अगर हम 14 करोड़ ये ऐड कर ले तो 100 करोड़ का इंक्रीज देखा जा रहा है. यानी वी कैन से दैट कि कहीं ना कहीं 96 या 86% का इंक्रीज जो है पॉपुलेशन में देखा गया. सो सिर्फ 60 ईयर्स में 60 ईयर्स के स्पैन टाइम में 84.92 करोड़ एवरेज रेट ऑफ ग्रोथ जो है पॉपुलेशन में देखा गया, जो कि 2.5% की टर्नओवर प्रेजेंट रेट में माना जाता है. सो पॉपुलेशन कहीं ना कहीं जितना ज़्यादा बढ़ रहा है और हाई रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, कहीं ना कहीं हाई राइज ऑफ पॉपुलेशन जो है 1975 के बाद देखा गया है, और उस टाइम पीरियड से पॉपुलेशन एक्सप्लॉयशन मार्क होता हुआ नजर आया है. सो आई होप यू अंडरस्टैंड द टॉपिक ऑफ द पॉपुलेशन एक्सप्लोजन. पॉपुलेशन एक्सप्लोजन मतलब जो कंटिन्यूअस इंक्रीज और जहां एक बेंचमार्क हम क्रिएट करते जा रहे हैं उसे कहीं ना कहीं पॉपुलेशन एक्सप्लोजन माना जा सकता है, जो कि नहीं होना चाहिए बट हो रहा है. ठीक है. सो नाउ लेट अस सी द पॉपुलेशन ट्रेंड इन इंडिया. व्हाट इज द पॉपुलेशन ट्रेंड इन इंडिया? The trends of population in India includes size of population, population growth rate, birth rate, death rate, rural urban population,
portion of female to male population, etc., and their related statistical information along with their interpretation and analysis. The very first population census was conducted in 1871 owing to the initiative of Jamshedji Tata. After that, a systematic census was conducted in 1891 and thereafter it has been conducted every 10 years. The first census of independent India was conducted in the year 1951. So population trend मतलब आपको पता है जो ऐसे कंटिन्यूसली चलता आता है उसे कहीं ना कहीं ट्रेंड बोलते हैं. हम कपड़ों में ट्रेंड ज़्यादा यूज़ करते हैं ना. अभी ट्रेंडिंग में क्या है, कपड़े, शूज़ इस वगैरह में हम ट्रेंडिंग में, यानी अभी कितना क्या चल रहा है, प्रेजेंट सिनेरियो क्या है. तो ट्रेंड ऑफ पॉपुलेशन, अगर इंडिया के अंदर पॉपुलेशन की ट्रेंड की देखे तो उसमें क्या किया, साइज ऑफ पॉपुलेशन. फर्स्ट ऑफ ऑल साइज, जैसे कि हमने देखा 36 से 120 हो रही है तो साइज ऑफ पॉपुलेशन. फिर पॉपुलेशन ग्रोथ जो कि हमने देखा 2.5% इंक्रीज हुआ, तो उस तरीके का कैसे ग्रोथ देखा गया. फिर बर्थ रेट कैसे इंक्रीज हो रहा है. डेथ रेट कैसे डिक्रीज हो रहा है. रूरल अर्बन पॉपुलेशन, रूरल एरिया में कितने पॉपुलेशन है, अर्बन एरिया में कितने पॉपुलेशन है. फिर मेल का प्रोपोर्शन कितना है, फीमेल का प्रोपोर्शन कितना है, इस तरीके से देखना. सो ये सारी चीजें कहीं ना कहीं ट्रेंड ऑफ जो है पॉपुलेशन ऑफ इंडिया को डिफाइन करता है. इवन स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, आपको पता है कि डेटा उसका टेबल दिया गया होता है और उसके साथ उसको हम इंटरप्रेट करते हैं, यानी उसके हम डायग्राम बनाते हैं, फिर उसको एनालाइज करके हम उसके ऊपर चीजें लिखते हैं. तो यहाँ पे स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन, इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस भी इस क्वेश्चन का देखा जाता है. अगर हम पॉपुलेशन को ट्रेंड यानी ये सारी चीज़ों की काउंटिंग करनी पड़ती है, स्टैटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन हमें कब मिलता है, जब हम उसको कलेक्शन ऑफ डेटा करें. तो कलेक्शन ऑफ डेटा पॉपुलेशन की कैसी होती है, तो सेंसस रीडिंग से. तो सबसे पहला पॉपुलेशन सेंसस रीडिंग जो है 1781 में हुआ था, जिसका इनिशिएटिव किसने उसे इनिशिएट किया, तो जमशेदजी टाटा ने बोला कि कितने लोग हैं उसको पहले कैलकुलेट करो. तो 1871 में सबसे पहला सेंसस रीडिंग देखा गया, जो कि एक इनफॉर्मल वे में देखा गया. फिर एक सिस्टमेटिक सेंसस रीडिंग जो है 1891 में देखा गया, जो कि फिर धीरे धीरे क्या हुआ, तो हर 10 साल में हमें सेंसस रीडिंग करना है, ऐसा हमने कंक्लूड किया और सिस्टमेटिकली हम सेंसस रीडिंग करते गए. फिर जो फर्स्ट सेंसस रीडिंग इंडिपेंडेंस के बाद, जैसे कि आज़ादी के बाद फर्स्ट कब किया गया, तो 1951 में किया गया था. 1941 में लास्ट हुआ होगा, इसलिए 1951 में किया गया था, यानी इंडिपेंडेंस के 3 साल बाद किया गया था. 1947 में 1947 में हमें हुआ, यानी 48, 49, 50 और 51 यानी 4 इयर्स के बाद हमने सेंसस रीडिंग किया. सो यहाँ तक का टॉपिक आज रहेगा. सो फर्दर टॉपिक साइज एंड ग्रोथ है, तो उसको कंटिन्यूटी में देखेंगे तो ज़्यादा मजा आएगा डायग्राम के साथ, इसलिए उसको हम नेक्स्ट वीडियो पे देखेंगे. सो नाउ लेट अस मूव ऑन विद अ ब्रीफ डिस्कशन ऑफ द टॉपिक दैट वी हैव सीन टुडे. So students, I hope that you all have understood the today's portion in a very well manner. As you all know, today we have seen the introduction of the population, and after that we have seen the meaning of the population explosion and the present population trend in India. About that we have seen in a very brief manner. So let us have a short discussion of the portion that we have seen. Introduction की अगर हम बात करते हैं, जिसमें शुरू कहते ही हमें कहीं ना कहीं फर्स्ट लाइन में ये इंडिकेट कर दिया कि जब भी हम इकोनॉमिक रिलेटेड कोई भी टॉपिक डिस्कस करें उसमें इनएविटेबल यानी टाला नहीं जाने वाला एक टॉपिक जो है पॉपुलेशन का माना जाता है. पूरे वर्ल्ड के अंदर 7 बिलियन का बेंचमार्क पॉपुलेशन इंक्रीज देखा गया, जिसमें से सिर्फ और सिर्फ इंडिया के अंदर 1.25 बिलियन देखा जाता है, यानी ज्यादा जो पॉपुलेशन ग्रोथ है वो इंडिया के अंदर देखा जाता है. ये प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ इंडिया की नहीं, ओवरऑल वर्ल्ड की है, बट इंडिया का कुछ ज्यादा है ये हम बोल सकते हैं. सो इंडिया के अंदर जितना पॉपुलेशन इंक्रीज हो रहा है उसके साथ साथ गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है कि उन लोगों को बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज प्रोवाइड किया जाए. व्हाट आर द बेसिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज, फूड, क्लोथ, हाउस. सो ये सारी बेसिक रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए उनको क्या, इनकम चाहिए. इनकम कहाँ से जनरेट होगा, तो एम्प्लॉयमेंट. अब एम्प्लॉयमेंट, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अगर वो जनरेट नहीं कर पाए तो गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना पड़ता है. तो इस तरीके से मोस्ट ऑफ इकोनॉमिक प्रॉब्लम की कहीं ना कहीं एक बेसिक रीजन की अगर हम बात करते तो वो पॉपुलेशन इंक्रीज माना जाता है. पॉपुलेशन इंक्रीज में कहीं ना कहीं 2 एस्पेक्ट्स को कंसिडर किया जाता है, जिस वजह से इकोनॉमिक में प्रॉब्लम देखा जाता है. जो 2 टॉपिक के अंदर फर्स्ट टॉपिक ऐसा है, जितना पॉपुलेशन इंक्रीज होता जाएगा उतना हमारा नेचुरल रिसोर्सेज जो है लिमिटेड है. अगर आप लैंड,
वाटर, ये सारी चीजों को देख लो तो ये लिमिटेड है क्योंकि ये गॉड गिफ्टेड है, इसे हम वापस रीजनरेट नहीं कर सकते। तो जितने पॉपुलेशन इतना रैपिडली इंक्रीज होता है उतना कहीं ना कहीं ये पोर्शन ऑफ रिसोर्सेज हम एक्स्ट्रा नहीं बना सकते, ये जितना है उतना ही लिमिटेड रिसोर्सेज हमें यूज करना पड़ता है। सो लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ जब पॉपुलेशन इंक्रीज होता है इसका मतलब यहाँ प्रॉब्लम क्या होगा, तो डेप्लिट्स पास मतलब जल्दी से वो रिसोर्सेज खत्म होने लगेगा। जितना जल्दी वो खत्म होगा ये मोस्ट डेंजरस हो सकता है फ्यूचर जनरेशन के लिए, क्योंकि हम तो इसको यूज करके चले जाएंगे बट फ्यूचर जनरेशन के लिए वो रिसोर्सेज मिल नहीं पाएगा, जो कि एज अ पोर्शन ऑफ ह्यूमन बीइंग हमें हमारे एंसेस्टर्स ने कुछ चीजें दी है तो हमें भी हमारे फ्यूचर जनरेशन को वो देना चाहिए। ये एक ह्यूमन बीइंग का कॉन्सेप्ट माना जाता है, बट हम उस चीज को कहीं ना कहीं पॉपुलेशन राइज के साथ एक डेंजर के जोन पे देखे जा रहे हैं। नेक्स्ट पोर्शन जो है, जितने अनस्किल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज होगा उतने ही लोग उसका जो नेचुरल रिसोर्सेज ऑलरेडी लिमिटेड है उसको बेस्ट वे में ऑप्टिमम यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। अगर उसको बेस्ट वे में यूटिलाइज ना कर पाए इसका मतलब कहीं ना कहीं उससे क्या होगा, तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट नहीं होगा, और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अंदर ये स्किल्ड अनस्किल्ड जो पॉपुलेशन राइज हो रही है वो एक बैरियर बनेगा और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को रोकेगा। तो ये एक सेकेंड एक्सपेक्ट की तरह देखा गया। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें देखने के बाद आपको अच्छे से पता चल गया होगा कि इकोनॉमी के अंदर पॉपुलेशन के बारे में जानना कितना इंपॉर्टेंट है, क्यों पॉपुलेशन इतना इंक्रीज हो रहा है, व्हाट इज द रीजन, और पॉपुलेशन की स्टडी से हम क्या कर सकते हैं, कितना इकोनॉमिक प्रॉब्लम को हम सॉल्व कर सकते हैं, वो सारी पोर्शन के लिए ये चैप्टर कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट है। यही हमने इंट्रोडक्शन से जान लिया। नेक्स्ट हमने देखा मीनिंग ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लॉयशन। फर्स्ट ऑफ ऑल एक्सप्लॉयशन मतलब जैसे कि मैंने बोला एक बॉम्ब का फटना जो एक्सप्लोड होता है उसे कहीं ना कहीं एक्सप्लॉयशन बोला जाता है। सो पॉपुलेशन एक्सप्लॉयशन का मतलब पूछोगे कि पॉपुलेशन फटते, नो, द रैपिड राइज, जितना ऐसे फट से वो इंक्रीज होता है उसे कहीं ना कहीं ब्लास्ट कैसे होता है, ऐसे एक सेकेंड में हो जाता है, उसी की तरह कहीं ना कहीं जो कंटिन्यूअस इंक्रीज जो पॉपुलेशन में देखा जाता है उसे पॉपुलेशन एक्सप्लॉयशन बोला जाता है। व्हाई, व्हाट इज द रीजन, क्यों पॉपुलेशन एक्सप्लॉयशन देखा जा रहा है। कहीं ना कहीं इंडिया के अंदर हम देखें तो डेथ रेट धीरे धीरे इंक्रीज हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, और उसके साथ साथ बर्थ रेट इंक्रीज हो रहा है। हाउ दिस इज पॉसिबल, हम जितना टेक्नोलॉजिकली या इकोनॉमिक ग्रोथ करते जा रहे, डेवलपमेंट करते जा रहे, उतना उतना हमारा मेडिकल फैसिलिटी और सारी चीजें डेवलप हो रही है। ये सारी चीजें डेवलप होने की वजह से लोग कम होते मरते हैं। पुराने टाइम पे, एशियन टाइम पे अगर देखो लोग डायरिया होके भी यानी जाड़ा उल्टी होता था तो भी मर जाते थे, बट अब वो सिनारियो नहीं है। अभी तो बड़े बड़े रोगों को भी हम सॉल्व कर सकते, इतना मेडिकल हमारा सपोर्ट हुई। तो इससे कहीं ना कहीं हमने क्या किया, डेथ रेट को कंट्रोल किया। जितना डेथ रेट कंट्रोल हुआ उतना बर्थ रेट स्टेबिलिटी में नहीं रहा और कंटिन्यूअस राइज जो है बर्थ रेट में देखा गया। जितना कंटिन्यूअस बर्थ रेट बढ़ता गया और एज ए नेट पॉपुलेशन का जो इंक्रीज देखा गया उसे पॉपुलेशन एक्सप्लॉयशन माना जाता है। इंडिया के अंदर हम देखें तो जैसे कि हमने देखा इन अ सर्वे, हमने ये देखा कि एट द पोर्शन ऑफ द एंशिएंट टाइम 36.1 करोड़ का जो है पॉपुलेशन देखा गया, जो 2011 में आते आते ही 121.02% यानी करीबन 84.92% इंक्रीज जो है पॉपुलेशन में देखा गया। कैसे, ऑल ऑफ सडन कंटिन्यूअस राइज जो है पॉपुलेशन के अंदर देखा गया, जो कि 2.5% का इंक्रीज माना जाता है। धीरे धीरे जितना पॉपुलेशन बढ़ता जा रहा है उतना उतना इकोनॉमिक्स के अंदर हमें कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स और उतने उतने इकोनॉमिकली कंट्री को भी प्रॉब्लम फेस अप करना पड़ता है। तो ये हुआ पॉपुलेशन एक्सप्लॉयशन की बात। 1970 के बाद पॉपुलेशन एक्सप्लॉयशन जो है कंटिन्यूअसली स्टार्टअप हुआ, ये चीज माना जाता है। फिर हमने डिटेल में देखा प्रेजेंट ट्रेंड ऑफ पॉपुलेशन इन द इंडिया। सो व्हाट इज ट्रेंड, ट्रेंड मतलब पॉपुलेशन के अंदर कंटिन्यूअस जो चीजें देखी जाती है उसे कहीं ना कहीं ट्रेंड माना जाता है। तो साइज ऑफ पॉपुलेशन, बर्थ रेट, डेथ रेट, अर्बन एरिया, रूरल एरिया के पॉपुलेशन, ठीक है, मेल फीमेल का पॉपुलेशन। सो ये सारी पोर्शन कहीं ना कहीं हमें जो है पॉपुलेशन के बारे में करंट में क्या ट्रेंड है उसके बारे में एक्सप्लेन करता है। इफ यू सीइंग इन अ वेरी डेप्थ मैनर, कहीं ना कहीं आपको पता है ये सारी चीजों में हमें स्टैटिस्टिकल इंफॉर्मेशन चाहिए होता है, यानी डेटा होता है। अब डेटा तो ऐसे ही आता नहीं है, सो हाउ वी कैन फाइंड द डेटा, तो उसके लिए हमें उसका डेटा कलेक्ट करना पड़ता है। हाउ द कलेक्शन ऑफ डेटा इज पॉसिबल इन पॉपुलेशन, तो सेंसस रीडिंग के थ्रू इसे हम कर सकते हैं। तो सेंसस रीडिंग कब से शुरू हुआ, सो सेंसस रीडिंग एशियन टाइम में इनिशिएटिव जो है जमशेद टाटा से शुरू किया गया था। आफ्टर दैट ऑन वंस पीरियड
ये देखा गया कि सेंसस रीडिंग जो है 1871 में एक फॉर्मेट सिस्टमेटिक वे में देखा गया। स्लोली ये माना गया हर 10 साल के एक बार ये जो पोर्शन ऑफ सेंसस रीडिंग होना चाहिए, जो एक सिस्टमेटिक वे में कैरी फॉरवर्ड हुआ। इंडिपेंडेंस के बाद यानी फर्स्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस जो सेंसस रीडिंग हुआ था वो 1951 में, यानी आफ्टर द इंडिपेंडेंस 4 ईयर्स के बाद देखा गया था। सो यहाँ तक का टॉपिक आज हमने डिटेल में देखा। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड द पोर्शन इन अ वेरी वेल manner. So students, I hope this video was an interesting video for you all. Until the next interesting video is not coming, I hope you all will be fit, fine and safe at home. Until that, Jai Hind and Jai Bharat to everyone.